Welcome back to our another lecture. In previous lecture we have discussed about the feedback inhibition, the types of feedback inhibition, positive and negative, with certain example. In this video we will discuss about the covalent modified enzyme, and the example is glycogen phosphorylase. Okay, so glycogen, this is stored in the muscles and liver. Now how it has been regulated, the metabolism of this glycogen, how it is regulated by the enzyme glycogen phosphorylase. That is all about this point. Okay, covalently modified. Now here glycogen phosphorylase, this is the enzyme used for the regulation or used for the breakdown of glycogen into different subunits or into single subunit. Okay, now glycogen, it is the chain of the glucose linked by the alpha 1,4 linkage, or you can say alpha 1,4 bond. Okay, now there are n numbers of glucose units which gives the glycogen, and this n number of glucose subunits are linked by the alpha 1,4 linkage bond, or you can say alpha 1,4 bond. Okay, and the breakdown of this glucose unit is being carried out by the enzyme glycogen phosphorylase, which is stored in the muscle and the liver. Let's see now. Glycogen phosphorylase covalent attachment can modify this enzyme. Okay, now the point is only the covalently modified enzyme. Now here what happens? There is attachment, covalent attachment. Covalent attachment is a fixed attachment which is unable to break, isn't it? Which is unable to break. If at the active site of the enzyme that substrate is bounded or substrate get binds by the covalent bond, then it is difficult to break. Okay, enzymes are protein, so definitely there is disturbance in the structure of protein. अल्टीमेटली जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, इट विल रिजल्ट इनटू द डिस्टर्बेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी और रिएक्शन. इट इज गोइंग टू अफेक्ट द रिएक्शन. ओके, सो covalent attachment can modify the enzyme active site. Okay, getting my point? enzyme की active site कौन सा enzyme है यहाँ पर? We are just talking about one enzyme now, that is glycogen phosphorylase. Okay, यहाँ पर मतलब let me draw the diagram. This is the enzyme और ये है enzyme की active site. Okay, ये कौन सा enzyme है? स्पेसिफिकली मैं सिर्फ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के बारे में ही बात कर रही हूँ कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का ये है एक्टिव साइट. सो व्हेन देयर इज अटैचमेंट, substrate is attached to this active site of the enzyme, this attachment will be covalent. So to break this attachment, the entire structure will get disturbed. Okay, the protein structure will get disturbed. So that is the meaning of the sentence. Covalent attachment can modify the enzyme activity, can change the enzyme function, which ultimately will result into the somewhat change in the reactions. Okay, now phosphorylation. How this phosphorylation is done? Means इसकी activity कैसे होती है? Glycogen phosphorylase, ये enzyme की activity कैसे होती है? ये regulate कैसे करता है? इसका mechanism क्या है? Working क्या है? तो ये फॉस्फोराइलेशन की मदद से भी कर सकता है एंड डीफॉस्फोराइलेशन की मदद से भी कर सकता है. इट कैन बी मिथाइलेशन भी हो सकता है, एडिनाइलेशन भी हो सकता है, एसाइलेशन भी हो सकता है. ये मैं सब क्या बोल रही हूँ? मींस ये जो हम अटैचमेंट बोल रहे हैं ना, ये अटैचमेंट किसकी हो सकती है? एक्टिविटी कैसे कैरी आउट हो सकती है? आइदर बाय फॉस्फोराइलेशन मींस अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और बाय डीफॉस्फोराइलेशन मींस रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. यही एक मैकेनिज्म है. ओके, अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कैसे अटैच होने वाला है? फॉस्फेट ग्रुप ये काइनेज विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम काइनेज से अटैच होगा. वी हैव सीन इन द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल. ओके, ग्लूकोज एंड
है. ओके, सो फॉस्फोराइलेशन मींस एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप बाय द एंजाइम काइनेज. ओके, एंड ये डीफॉस्फोराइलेशन मींस व्हाट, रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप बाय द एंजाइम फॉस्फेटेज. गेटिंग माय पॉइंट, बाय द एंजाइम फॉस्फेटेज. ये सब क्या देख रहे हैं, इस एंजाइम की एक्टिविटी देख रहे हैं. इस एंजाइम की एक्टिविटी हम कहां देख रहे हैं, ग्लाइकोजन कहां प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन मसल्स एंड लीवर. दिस व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू ब्रेक दिस ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज सब यूनिट. एक एक सब यूनिट कम होगा, राइट. ग्लाइकोजन किससे बना है, ग्लूकोज 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 लिंक बाय द अल्फा 1 को लिंकेज. सो हमें इसका ब्रेक डाउन करना है, तो एक एक ग्लूकोज रेसिड्यू ब्रेक होगा. ओके, n-1 नंबर, एक एक नंबर रिड्यूस होगा. दिस यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. ओके, द एंजाइम इन्वॉल्व इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. तो यहाँ पर सिर्फ फॉस्फोराइलेज मतलब सिर्फ फॉस्फेट ऐड नहीं हो रहा है. फॉस्फोराइलेज में बहुत से एक्टिविटी कैरी आउट हो सकती है, लाइक देयर इज फॉस्फोराइलेशन, there is dephosphorylation, okay, and there are different forms of the enzyme phosphorylase. तो ये mechanism, ये regulation हम देख रहे हैं. Getting my point? So that is there. So addition of the phosphate group by the kinase, removal of the phosphate group by the enzyme phosphatase. Getting my point? So यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. Next our session is about this. Means what? Now the enzyme, key enzyme is our phosphorylase. Forget about glycogen, just consider first phosphorylase. Phosphorylase हमारा enzyme है, ठीक है. अभी phosphorylase is being active. There are two types of phosphorylase. ये enzyme के दो forms है, phosphorylase A and phosphorylase B. Two forms. phosphorylase A ये एक active form है और phosphorylase B ये inactive form नहीं है, लेकिन इसकी एक्टिविटी एज कंपेयर टू फॉस्फोराइलेज से लेस है, कम है, ठीक है. ये हाईली एक्टिव है, ये सिर्फ एक्टिव है या फिर लेस एक्टिव है. फॉस्फोराइलेज बी, टू टाइप्स ऑफ द फॉस्फोराइलेज. गेटिंग माय पॉइंट. नाउ दिस लेस एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉस्फोराइलेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू more active or active form of the phosphorylase, that is phosphorylase A, by the glycan. कौन सी चीज इन्वॉल्व है, कैसे फॉस्फोराइलेज बी, कैसे फॉस्फोराइलेज ए से कन्वर्ट होता है, बाय द ग्लाइकैन बॉन्ड. ओके, सो दिस इज द ग्लाइकैन बॉन्ड इज द हार्मोन. ओके, ग्लाइकैन बॉन्ड. और ये फॉस्फोराइलेज, सिर्फ फॉस्फोराइलेज की बात करें तो फॉस्फोराइलेज दिस इज एक्टिवेटेड बाय द हार्मोन इपिनेफ्रिन. ओके, ये हार्मोन इपिनेफ्रिन हार्मोन से ये एक्टिवेट. अभी ग्लाइकेगॉन जो हार्मोन है इट इज सिक्रेटेड बाय द ऑर्गन पैनक्रियास, ठीक है. पैनक्रियास सिक्रेट करती है, लेकिन इसको इसकी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए या फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए दिस हार्मोन और दिस प्रोडक्ट मस्ट ट्रांसफर थ्रू लीवर. तो इसका जो एक्टिविटी जो ये दिखाती है, सिक्रीशन होता है पैनक्रियास में, एक्टिविटी दिखाती है लीवर में. Okay, that is the glycagon. Okay, active form is in the liver. And epinephrine, this is the we can say fight flight hormone. मतलब fight flight hormone means what? आपको अगर लगता है आपको सुई चुभ रही है या सुई चुभने वाली, you remove your hand. Okay, a fire is there and you suddenly remove your hand. So that is fight to flight action. तो ये हार्मोन उसके लिए हेल्प करता है, epinephrine. Getting my point? So this phosphorylase enzyme is activated by hormone epinephrine और ये less active form more active form में कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइकेगॉन की मदद ली जाती है. Okay, this is the second part. And yes, one more part in this is phosphorylase A is made up of the serine residue. मतलब क्या? This is the enzyme. Okay, ये एंजाइम की एक्टिविटी, ये एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोराइलेज. ओके, ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम की एक्टिव साइट में आप ये एक्टिव साइट बनी है, ये एक्टिव साइट का कंपोजिशन है सेरीन रेसिड्यू. ओके, इट इज मेड अप ऑफ द सेरीन 14 मींस उसकी जो नंबरिंग है दैट इज 14 सेरीन रेसिड्यू.
enzyme phosphorylase is made up of the serine residue. So I have wrote here serine residue, okay, which is the active form. Here phosphorylase A, third point, phosphorylase A can again be restored back by cleaving phosphate bond or by cleaving phosphate group. Okay, मतलब क्या है, phosphorylase A ये एक्टिव फॉर्म है, phosphorylase B ये लेस एक्टिव फॉर्म है. ओके, अब ये हर समय एक्टिव फॉर्म में नहीं रह सकता, उसे अपनी एनर्जी स्टोर करनी होगी, या फिर आप कहेंगे उसको उसकी एनर्जी रिस्टोर करनी होगी. ठीक है, तो रिस्टोर करने के लिए उसे फॉस्फेट ग्रुप अपना निकालना होगा. तो वो फॉस्फेट ग्रुप कैसे निकालेगा, अपनी एनर्जी कैसे स्टोर करेगा या फिर अपनी एनर्जी कैसे रिस्टोर करेगा, ये उसका मैकेनिज्म मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया है. हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. पहले हमने जनरल इंट्रो देखा, फिर हमने उसके दो टाइप्स देखे. ठीक है, फिर हमने देखा कि फॉस्फोराइलेज ए ये हर बार एक्टिव फॉर्म में नहीं रह सकता. सी अगर वो हर बार एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, एटीपी की जरूरत ज्यादा होगी, या फिर हम उसे कहेंगे एनर्जी कंजम्पशन. यही एक पॉइंट है कि एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस फास्ट कैरी आउट होंगे, डिस्टर्बेंस होगा, रेगुलेशन जो हम कर रहे हैं वो रेगुलेशन हो ही नहीं पाएगा. सो इट इज नेसेसरी टू रिस्टोर दैट एनर्जी, इट इज नेसेसरी टू रिस्टोर दैट एक्टिव फॉर्म. जब चाहिए तब आप ले सकते हैं. सो ये रेगुलेट करने के लिए हमें इसको बैक अपने नॉर्मल इन द सेंस बैक उसकी एनर्जी रिस्टोर करनी पड़ती है. ओके, सो दैट इज द mechanism how it is been coming back, means how active is converted into less active or how less active is converted into the active, and how that active the energy of this active is been restored. This mechanism में हम देखेंगे. ठीक है, let's see now. Here phosphorylase B, which is less active form, and this phosphorylase A, this is highly active form, we can say active just. Okay, now see phosphorylase B यहाँ दिखाया गया है और phosphorylase A यहाँ दिखाया गया है. ये एंजाइम के एक्टिव साइट में, दोनों के एक्टिव साइट में क्या प्रेजेंट है, सेरिन रेसिड्यू प्रेजेंट है. सेरिन इज द अमीनो एसिड. ओके, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. तो यही इसी एंजाइम के एक्टिव साइट में यहाँ पे साइड चेन दिखाई गई है CH. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. लेस एक्टिव को हमें पहले एक्टिव बनाना है. ठीक है, तो फिर ये phosphorylase B है, उसके एक्टिव साइट में, दोनों के एक्टिव साइट में सेरिन रेसिड्यू प्रेजेंट है. तो दिस इज द सेरिन रेसिड्यू की ये साइड चेन है. ठीक है, साइड चेन है सेरिन रेसिड्यू की. दिस इज द दिस बोथ आर द साइड चेन ऑफ द सेरिन रेसिड्यू. यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाया गया है. नाउ both are the second side chain. Now what will happen, this phosphorylase B will converted into the less active form, will converted into the active form. जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया, एक मैकेनिज्म है यहाँ पर दिखाया. तो कैसे होगा, with the help of the enzyme kinase. Kinase in the sense here what will happen, here there will be phosphorylation, मतलब यहाँ पर phosphate group ऐड होगा. सिंपल फॉर्मूला है, लेस एक्टिव को एक्टिव बनाने के लिए सिर्फ phosphate group की एडिशन है. phosphate group कैसे ऐड होगा, by the enzyme kinase. उसी के अलावा उसे हार्मोन की जरूरत है. तो दूसरा हार्मोन कौन सा ये प्रोवाइड करता है, ग्लूकागॉन. मैंने आपको जैसे बताया ये सीक्रेट होता है पैनक्रियास में, लेकिन इसकी एक्टिविटी कैरी आउट होती है लीवर में. तो इसीलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लीवर लिखा है. ठीक है, तो काइनेज एंजाइम इज देयर, ग्लूकागॉन विल परफॉर्म इट्स फंक्शन. ओके, मींस ग्लूकागॉन विल स्टिमुलेट, जैसे कि कोएंजाइम कोफैक्टर का फंक्शन होता है, एंजाइम तो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, लेकिन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, to stabilize the rate of reaction, we need the cofactors and coions, or you can see we need the coenzymes. So this they epinephrine and glucagon will work as the cofactors. Enzyme तो है. Okay, so glucagon और epinephrine is present in the muscle. This activity is shown in the liver. ये दोनों अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे. क्या होगा, to this phosphorylase B, and at the same time energy भी required होगी. Definitely phosphate has been added, so triphosphate is converted into the diphosphate, because यहाँ पर क्या हो गया है, phosphorylase B में phosphate group ऐड हो गया है. जब phosphorylase B में phosphate group ऐड हो जाता है तो उसका कन्वर्जन एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, यानी कि phosphorylase A में होता है. कैसे हो रहा है, by the enzyme kinase, and this both hormones are involved. Okay, glucagon and epinephrine. At the same time ATP energy is also required. Its tri is converted into the di because one phosphate has been utilized here. Now let's have to form
रिस्टोर करनी है। ओके, नाउ हाउ वी विल रिस्टोर दिस एनर्जी, मतलब फॉस्फोराइलेज ए को फिर से फॉस्फोराइलेज बी में करना है, लेस एक्टिव में करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, सी हियर हाइड्रोक्सिल कैन अटैच टू फॉस्फेट, मतलब सिंपल स्ट्रेटजी है, ये हाइड्रोक्सिल अभी यहाँ पर फॉस्फेट अटैच हो चुका है, यानी कि ये लेस ये एक्टिव हो चुका है, फॉस्फेट इज बीन अटैच, मतलब हाइड्रोक्सिल की जगह पर फॉस्फेट ग्रुप इज बीन अटैच। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे उसके लेस एक्टिव फॉर्म में। तो इसका सेकंड पॉइंट देखिए, वाटर कैन रिलीज एंड दिस वाटर इज नीडेड फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉस्फेट बॉन्ड। ये जो सेकंड लाइन है ये सेकंड रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब to break down the phosphate, to break down this bond require the water. Okay, water can release, water हमें required हो सकता है, क्यों, क्योंकि it break the phosphate, it remove the phosphate. Okay, so there is hydrolysis, यहाँ पर hydrolysis होता है, breakage of the bond होता है. Okay, phosphate bond is been break and this water is converted into the inorganic phosphate. एनर्जी इज बीन डाउन, यहाँ पर एनर्जी हाइड्रोलिसिस के लिए, बॉन्ड ब्रेक के लिए एनर्जी ऑलरेडी यहाँ रिक्वायर्ड हो चुकी है, तो एनर्जी कम हुई है एंड दैट एक्टिव, डेफिनेटली एनर्जी हाइड्रोलिसिस हुआ है, एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है, वाटर का कन्वर्जन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में हुआ है एंड देन दिस highly active, we can say active form is converted into the less active form. Here just there is requirement of water because there is hydrolysis. Hydrolysis क्यों हो रहा है, वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही है टू ब्रेक डाउन दी फॉस्फेट बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर हमें एडिशनल कोएंजाइम्स या दिस हार्मोन्स की जरूरत पड़ी, एट द सेम यहाँ पर वाटर, ये रिएक्शन है, ओके, वाटर की जरूरत पड़ी एंड बाय प्रोडक्ट हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में मिलता है एंड देन this active form is converted into the less active form. Why serine is there, because इसके स्ट्रक्चर में ही एंजाइम, इसका जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट इस सेरीन रेसिड्यू से बनी है, इसीलिए हमने सेरीन लिया है। Getting my point? So that is there. So this is overall mechanism which is very simple. We have to just convert less active into active and then again active into less active. Okay, why we have to convert this active into less active? Because we have to, हम क्या कर रहे हैं, हम रेगुलेट कर रहे हैं, हम पाथवेज रेगुलेट कर रहे हैं, पाथवेज रेगुलेट कर रहे हैं मतलब कि टू कैरी आउट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल, इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट द पाथवेज, तो ये सब मैकेनिज्म उसी के लिए हो रहा है। ओके, तो ये एनर्जी अब रिस्टोर होगी, बाद में फिर से यही मैकेनिज्म होगा, ये साइकिल क्या है, ये इट इज कंटिन्यूअसली कैरिंग आउट। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द, इस तरीके से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज या फिर इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, इस तरीके हम सिर्फ देख रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, एंजाइम का फंक्शन क्या है, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी और एंजाइम का फंक्शन, पाथवे कैसे कैरी आउट होता है ये मैटर नहीं करता, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एंजाइम कैसे रेगुलेट करता है रिएक्शंस ये आपके सिलेबस में, तो हमने उसी एंजाइम्स के दो फॉर्म्स है, दो टाइप्स है, उनके मैकेनिज्म हमने डिटेल में स्टडी किया।